ایوب خان کو میرا رشتہ دار نہیں تھا، ایوب خان آپ کا رشتہ دار تھا۔ جنرل جنجوعہ کو یاد کرو، انہوں نے جو ہے مشرف آپ کا رشتہ دار تھا، باجوہ آپ کا باپ تھا۔ وہ اندر اطمینان سے السلام علیکم ناظرین کرام، خواجہ آصف نے آج عمران خان کو برا بھلا بول دیا، اتنے سخت الزامات لگائے کہ اسمبلی میں بیٹھے لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ اس کے بعد شہریار آفریدی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خواجہ آصف کی ایسی طبیعت صاف کی۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے دیکھتے ہیں آخر اسمبلی میں ایسا کیا ہوا۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، شکریہ۔ نہیں ہے یہاں پہ کہاں ہے، یہاں پہ کہاں گیا ہے ہمارا وزیر داخلہ جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب، کہاں گئے ہیں کہ اللہ کو جان دینی ہے؟ وہ انہیں کلے نے اللہ نے جان دینی ہے، باقی نے کنو دینی ہے؟ جناب قرآن چک کے، قرآن اٹھا کے انہوں نے یہاں پہ باتیں جھوٹ بولے ہوئے ہیں۔ یہ در و دیوار جو ہے یہ گواہ ہیں اس چیز کی۔ یہاں پہ باپ جو ہے باجوہ کو باپ بنا لیتے تھے، لیکن آج جو ہے اس انسٹیٹیوشن کو دفاع کرنے کا اس کا تیار نہیں ہے۔ باجوہ کو باپ بنایا وہ تھا ان سب نے، اور جو لوگ جو ہے سیاست کے لیے باپ بدل رہے ہیں ان کی کیا کوالٹی ہوگی؟ کیا بندہ ہے؟ حالی تو میں شروع ہویا تیرے نال، سب نے مرنا ہے، سب نے اللہ کو جان دینی ہے، تو کلے نے نہیں دینی ہے گی۔ جی کائنڈلی ایڈریس دا چیئر، فوائد صاحب ایڈریس دا چیئر۔ کون سی گفتگو کر رہے ہیں آپ؟ نے ملک کو چھوڑ دیں، ملک کو چھوڑ دیں، یہ کون سی گفتگو ہے آپ کی؟ میں آپ کو شرم آنی چاہیے جناب اسپیکر، جی یہ ان کے اکاؤنٹ سے، پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ ہوا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں نے تمام مغوی عورتوں کو 12 گھنٹے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ دیکھیں یہ کس کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں؟ یہ دہشت گردی، ان کا یہ اکاؤنٹ کا جو ہے یہ کاپی ہے۔ اس کے بعد ہے اس کا دوسرا جو ہے وہ فکرہ جو ہے یہ ایک دم کمپیریزن جو ہے اپنے سیلف انٹریسٹ پہ آ گئے ہیں۔ پنجاب میں 70 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد 22 ماہ سے جیل میں قید ہے، 22 ماہ سے۔ یہ ایک ہی ٹویٹ کے اندر جو ہے یہ 2 مسئلے اٹھائے ہوئے ہیں، اس سے ان کی کمٹمنٹ اور سنسیریٹی جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ اور میں نے تو معافی مانگی ہوئی ہے نا، میں تو معذرت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ جی تسی بھی تو کرو نا، آپ بھی تو کریں نا معذرت۔ کوئی ماضی کے جھروکوں میں جا کے دیکھیں کہ آپ کا کیا کردار تھا، آپ کے لیڈر کا کیا کردار تھا۔ جب اسی جنرل باجوہ کے پاؤں پکڑے کہ میں ساری عمر کی تمہیں ایکسٹینشن دیتا ہوں، مجھے دوبارہ اقتدار دے دو۔ جناب اسد قیصر صاحب، آپ اس چیئر پہ بیٹھے تھے، اس رات کیا ہوا تھا؟ سوری صاحب اس چیئر پہ بیٹھے تھے، اس رات کیا ہوا تھا؟ ایک آدھے گھنٹے کے اندر آپ نے کیا واردات کی تھی؟ آپ خود بتائیے گا جب آپ کی تقریر کی باری آئے گی۔ ہر سوچ کا محور جب زندگی کا مقصد اس حکومت کا تھا، سب سے پہلے انہوں نے ایک سازش رچائی۔ سازش میں کس کا ساتھ دیا؟ ان آقاؤں کا جو آج پوری دنیا کو جکڑے ہوئے ہیں، وہ جو تگنی کا ناچ نچواتے ہیں، وہ لوگ جو سب سے پہلے آپ کے ملک کے اندر مایوسی پھیلاتے ہیں، پھر آپ کے معاشی نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، پھر آپ کی آزادی سلب ہو جاتی ہے، کیونکہ دے سے اکنامکلی ڈیپینڈنٹ کینٹ بی پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ۔ جب آپ معاشی طور پہ مقروض ہوں، آپ کی آزادی آپ سے لے لی جاتی ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ آئی ایم ایف، آج کیا وجہ ہے کہ ورلڈ بینک کے ڈکٹیشن پہ یہ حکومت آنکھیں بند کر کے عمل کر رہی ہے؟ ایٹ دا کاسٹ آف Pakistan, at the cost of the federating units of Pakistan, at the cost of the interests of Pakistan, and at the cost of the sovereignty of Pakistan. آج کیا وجہ ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ
मायूस हैं। आज वहां की माएं, बहनें, बेटियां इस हद तक चल गई हैं कि उन्होंने असला उठा लिया है। जनरल जंजुआ को याद करो, उन्होंने एंगेज किया था बलोचिस्तान की बलोच मां को, पश्तून मां को, हर सोच की मां को रीच आउट किया था और उन्होंने कहा था कि हमारी औलादे कुर्बान, लेकिन पाकिस्तान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आज सवाल यह निशान है, जब मुआशी आजमाइश में लोगों को मुब्तला करेंगे, जब आप बेसिक यूटिलिटीज नहीं देंगे, जब आप उनके हकूक पर डाका डालेंगे, तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि अमन आएगा। सिंध की धरती, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपका ताल्लुक है वहां से। पागल कुत्ते की वैक्सीन सिंध में नहीं मिलती। सिंध के लोग आजमाइशों में डूबे हुए हैं। वहां पे बुनियादी जरूरियात छीन ली गई हैं, वहां पे जमीनें, वहां पे बदमाश कल्चर उनके बुनियादी हकूक को सलब कर चुका है। वो सिसक रहे हैं। अल्लाह के बाद वो पाकिस्तान के इस ऐवान की तरफ देखते हैं, लेकिन जब इस ऐवान में बैठने वाले ईमान फरोशी करें कुछ टकों के लिए, जिसके जरिए अल्लाह ने उनको इन ऐवानों में बेचा हो, उसके साथ धोखा करें, तारीख उनको कभी माफ नहीं करती। इसी तरह पंजाब की मां सीटीडी, जुल्म और जबर, आजमाइशों का इम्तिहान, लूट कसूट, करप्शन के शिकंजे में जकड़ी हुई है। जहाज के लिए सब कुछ है, जाती जहाज के लिए पैसे हैं, बुनियादी जरूरियात के लिए तजलील आम पाकिस्तानी और आम पंजाब के लोगों का उन्होंने मकसद बना लिया है। थाना, कचहरी, महंगाई, बिजली, गुर्बत, तंगदस्ती, बेरोजगारी ने आम पंजाब और पाकिस्तान की सोचों को जकड़े में लिया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा, बदामनी, दहशतगर्दी, गुर्बत, महंगाई, फिर जलील कर लो, बेइज्जत कर लो, फिर बिजली नहीं, गैस नहीं, पीएसडीपी, एनुअल डेवलपमेंट में उनके लिए हिस्सा नहीं, उनकी जरूरियात जिंदगी। जाएं तो किसके पास जाएं? फिर खैबर पख्तूनख्वा का जवान बच्चा अगर गलती से मरी चला जाए, अगर गलती से कराची चला जाए, उसको रोक दिया जाता है, उससे फॉर्म बे मांगा जाता है, उससे शनाख्ती कार्ड के बाद उसको डिटेंशन में रखा जाता है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मॉक एक्सरसाइज होती है, दहशतगर्द का हुलिया पठान का बनाया जाता है। What you are trying to portray, Pashtuns are the best line of this motherland of ours. Pashtun was the first line defense of Pakistan. आप क्यों दीवार से लगा रहे हैं? क्यों उसकी तस्लील का जरिया बन रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मैं अभी बाय इलेक्शन में गया, जिस तरीके से गया, कश्मीर में क्या हो रहा है? 35A 370 एब्रोगेट करने के बाद हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तजलील हो रहा था। 1800 से लेकर अब तक कश्मीरियों ने हमें। नाजरीन कराम, सबसे पहले आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखी। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपने पूरी वीडियो गौर से देखी है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। हम आपके वक्त, मोहब्बत और सपोर्ट की दिल से कदर करते हैं। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है कि बराह करम ये आखिरी हिस्सा भी मुकम्मल देखें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। दोस्तों, आप हमें जरूर बताएं कि आज की इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। जो कुछ भी हुआ असेंबली में, क्या वो आपके ख्याल में दुरुस्त था या गलत? आपके नजदीक किसने बेहतर अंदाज में बात रखी? किसके दलाइल ज्यादा मजबूत थे? और आप समझते हैं कि इस पूरे मामले का आगे क्या नतीजा निकल सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। लिखें, हम आपके कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं और आपकी आरा हमारे लिए बहुत अहम होती है। अगर हमारी किसी बात से इत्तेफाक नहीं करते तो भी जरूर अपनी राय दें। हर इंसान को
अपनी बात कहने का हक है और हम हर मुस्बत राय का एहतराम करते हैं। बस हमारी दरख्वास्त है कि कमेंट करते वक्त अच्छे और मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करें ताकि सब लोग आराम से अपनी बात कर सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इसमें कुछ नया जानने को मिला हो या आपको लगता है कि ये मालूमात दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अहम होता है क्योंकि यही हमें मजीद मेहनत करने का हौसला देता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये वीडियो हजारों लोगों तक पहुंच जाए और वो भी इस मौजू के बारे में जान सकें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूदा बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि पाकिस्तान की हर बड़ी सियासी खबर, कौमी असम्बली की अहम कार्रवाई, अहम तकरीर और ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। दोस्तों, हम हर रोज पूरी मेहनत के साथ नई वीडियोस तैयार करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आप तक बर वक्त आसान जबान में और दिलचस्प अंदाज में मालूमात पहुंचे। आपकी मोहब्बत, दुआएं और सपोर्ट ही हमें हर रोज मजीद मेहनत करने का हौसला देती है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास सियासी शख्सियत, किसी अहम तकरीर या किसी बड़े सियासी मामले पर अलग से तफसीली वीडियोस बनाएं तो इसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। हम आपकी तजावीज़ को जरूर देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी पसंद के मुताबिक वीडियोस बनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर काफी अरसे से मौजूद हैं तो आपका भी दिल से शुक्रिया। आपकी मुसलसल सपोर्ट की वजह से ही हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है। और अगर आप आज पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द एक नई वीडियो, एक नए मौजू और अहम मालूमात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना, अपने घर वालों और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। दुआओं में याद रखें। हमेशा खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।